بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کی ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا، غلمان ملائک میں فردوس میں حوروں میں، غلمان ملائک میں فردوس میں حوروں میں، جنت کے نظاروں میں تیرے نام کا چرچا، کہتا ہے قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا، مسجد ہو کے محراب منبر کے مصلی ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا، صدیق میں فاروق میں عثمان میں علی میں، صدیق میں فاروق میں عثمان میں علی میں، آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، تخصیص ہے اصحاب میں ان چاروں کی ورنہ سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ معزز حاضرین، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے۔ پیدائش کس تاریخ کو ہوئی یہ اختلاف ہے، بعض علماء 12 ربیع الاول کو کہتے ہیں، بعض 9 اور بعض 8، بلکہ زیادہ راجح قول وہ 9 ربیع الاول کا ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ اس بارے میں سب علماء کرام اتفاق رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ پیدائش میں اختلاف ہے، خیر اس مہینے کے اندر آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو چونکہ یہ مہینہ آپ علیہ السلام سے خاص مناسبت رکھتا ہے، تو آج کے اس جمعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر کب تشریف لائے، تاریخ ہم جب اٹھا کر دیکھتے ہیں، تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے، آپ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کی حالت بگڑ چکی تھی، بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا تھا،
बीवियों की कोई कदर नहीं थी, शोहरों की कोई कदर बीवियों के नजदीक नहीं थी। माँ की इज्जत, माँ का एहतराम औलाद के अंदर से खत्म हो चुका था। बाप का एहतराम औलाद के अंदर से खत्म हो चुका था। बेटियों को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर करना ये एक आम रस्म बन चुकी थी। एक सहाबी रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए रो रहे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा, आप क्यों रो रहे हो? किस चीज ने आपको रुलाया है? वो क्या चीज है कि जिसकी वजह से आपकी आंखों से आंसू जारी हुए? वो सहाबी इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने जमाने जाहिलियत का वो वाकया याद करके रो रहा हूं कि मेरी एक छोटी सी बच्ची थी। वो छोटी सी बच्ची मेरे घर के सहन के अंदर खेल रही थी। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि बच्ची किसकी है? बीवी ने बताया कि कहीं मैं इस बच्ची को जिंदा जमीन के अंदर दफन ना कर दूं, मैं अपनी उस बेटी को खत्म ना कर दूं। इसलिए मेरी बीवी ने मेरे डर की वजह से कह दिया, ये बच्ची आपकी नहीं है, ये बच्ची पड़ोसन की बच्ची है। चुनांचे कई दिन गुजरते गए, मैं उस बेटी से मोहब्बत करता गया, मैं उस बेटी से प्यार करता गया। आखिरकार जब मेरी बीवी ने देखा कि हाँ, मेरे शोहर मेरी इस बच्ची से मोहब्बत कर रहे हैं, मेरी इस बच्ची से प्यार कर रहे हैं, तो उस बीवी ने कहा कि अच्छा, मैं तुमको बताती हूँ, सच सच बताती हूँ, ये बच्ची पड़ोसन की नहीं है, ये बच्ची बल्कि आप ही की बच्ची है। या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी के अल्फाज कहने थे, वही बच्ची जिससे मैं मोहब्बत करता था, जिससे मैं प्यार करता था। मगर जब उसने ये बोला कि बच्ची पड़ोसन की नहीं, ये बच्ची तो आपकी बच्ची है, या नबी अल्लाह, मेरा चेहरा गुस्से के अंदर लाल हो गया। मैं अपनी उस बच्ची को बाजार के नाम पर घर से बाहर ले गया। मेरी बीवी पूछती गई कि आप कहाँ ले जा रहे हो? मैं जवाब देता गया कि मैं बाजार के अंदर इस बच्ची को ले जा रहा हूं। लेकिन या नबी अल्लाह, मैंने उस बच्ची का गिरबान पकड़ा, उसको अपने कांधे पर लादा और मैं जाकर वीरान जगह पे पहुंचा और मैं गड्ढा खोद रहा था। गड्ढा खोदते खोदते मेरे कपड़ों पर मिट्टी गिर रही थी। वो मेरी नन्ही मुन्नी बच्ची अपने नन्हे मुन्ने हाथों से मेरे कपड़ों को झाड़ती और कहती, अब्बा जान, ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन मैं उसकी बात पर कोई तवज्जो ना देता। मेरा नफ्स, मेरा जमीर मर चुका था। मैं खड्डा खोदता गया, मेरे कपड़ों पर मिट्टी गिर रही थी, धूल आ रही थी, मगर वो मेरी वो बच्ची जिसको मुझे उस जमीन के अंदर जिंदा दफनाना था, वो अपने नन्हे मुन्ने हाथों से मेरे कपड़ों को झाड़ रही थी, मेरे कपड़ों को साफ कर रही थी। और वो नन्ही मुन्नी बच्ची बोल रही थी, अब्बा जान, ये क्या खड्डा खोद रही हैं? लेकिन मैं उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं देता। आखिरकार गड्ढा खोदा और मैंने अपनी उस बच्ची को उस गड्ढे के अंदर डाल दिया। वो बच्ची रोती गई और कहती गई, अब्बा मुझे इस तरह मत दफनाओ, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। लेकिन या नबी अल्लाह, मैंने उसकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैं अपने उस जमाने जाहिलियत के वाकये को याद कर कर रो रहा हूं। वो जमाना कि जिस जमाने के अंदर लड़कियों को जमीन के अंदर जिंदा दफन करना आम बात थी, बीवियों की कोई कदर नहीं थी, शोहरों की कोई कदर नहीं थी, माँ बाप का एहतराम औलाद के अंदर से खत्म हो चुका था। माँ बाप की इज्जत, माँ बाप की वक़ात औलाद के अंदर नहीं थी, बल्कि वालिद के इंतकाल के बाद उस माँ को लोग बीवी बना लिया करते थे। उस जमाने के अंदर कि जिस जमाने के अंदर गुलामों के साथ बदतर सलूक किया जाता था, इंसान तो इंसान, जानवरों के साथ भी सलूक किया जाता था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम जमाने जाहिलियत की तरह अपने जानवरों के साथ बुरा सलूक मत करना। जमाने जाहिलियत के अंदर क्या जानवरों के साथ सलूक किया जाता था, तारीख हमको ये बताती है, रिवायात हमको ये बताती हैं कि जब बारिश नहीं नाजिल होती थी,
किसी जानवर को पकड़ा और उस जानवर को पकड़कर उसको किसी दरख्त में बांधा और उसकी पूंछ के अंदर किसी रुई के जरिए से आग को जलाया, और जब वो उसकी दुम के अंदर पूंछ के अंदर आग पकड़ती थी तो वो जिस तरह तड़पता था, उछलता था, वो लोग जो चारों तरफ खड़े रहते थे, बीच के अंदर वो जानवर जो बना हुआ था जिसकी पूंछ के अंदर आग लगी हुई थी, जब वो आग उसकी पूंछ पर पहुंचती और वो जानवर तड़पता, बिलखता, उछलता, वो लोग तालियां पटकाते थे और हंसते थे, और अकीदा ये था कि जितना ये तड़पेगा उतना अब जल्दी ही बारिश नाजिल होगी। ये जमाने जाहिलियत का आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले ये दुनिया की हालत थी। भाई भाई का दुश्मन, बहन बहन की दुश्मन, औलाद माँ बाप की दुश्मन हो चुकी थी, और उस जमाने के अंदर छोटी छोटी बातों पर तलवारें निकल आया करती थी। तारीख हमको ये बताती है कि छोटी छोटी सी बात पर कई सौ साल तक वो जंग चलती थी, सौ साल गुजर जाते थे, बाप इंतकाल कर जाता, औलाद की वसीयत कर जाता था, फला कबीले से, फला खानदान से, फला बिरादर से हमारी लड़ाई है, हमारा झगड़ा है, लिहाजा उनसे इंतकाम लेना, उनसे बदला लेना, ये जंगों बरसों तक चलती थी, एक जमाने तक चलती थी। ये वो जमाना था आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले का। मगर कुर्बान जाए आमना के लाल पर, बल्कि यूं कहा जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इंसानियत पर रहम खाया, तरस खाया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल्ला के घर के अंदर हजरत मोहम्मद मुस्तफा, जो आप मोहसिन इंसानियत हैं, आप मोहसिन कायनात हैं, आपके सदके ये जहां बनी, आपके सदके ये दुनिया बनी, आपके सदके हजरत आदम की दुआ कबूल हुई, आपको अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया, आपने जिंदगी गुजारने के तरीके बतलाए, आपने भाईचारगी का पाठ पढ़ाया, और आपने इस रस्म को जो बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देना था, इस रस्म को आपने बीजों बन से उखाड़ कर फेंक दिया। गरीबों को खुशखबरी, रंगो नस्ल और हसब व नसब के इम्तियाज को मिटाकर सारी दुनिया को आपने उखुवत का, भाईचारगी का सबक और पाठ दिया। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख है कि आपके आने से पहले दुनिया की क्या हालत थी, और जब आपने मेहनत की, वही अबू बकर, वही सिद्दीक, वही उस्मा, वही अली, वही बिलाल हबशी, जिनकी कोई कदर नहीं थी, जिनकी कोई वकात नहीं थी, जिनकी कोई मंजिलत नहीं थी, मगर जब उनकी निस्बत आपसे जुड़ती है, जब निस्बत सिद्दीक अकबर की आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुड़ती है, सिद्दीक अकबर की, फारूक आजम की, उस्मान और अली की जब निस्बत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुड़ती है, तो इनका मकाम और मर्तबा बढ़ जाता है, बल्कि अर्शों से इनके लिए सलाम आ रहे हैं। दुनिया ही के अंदर इनके लिए जन्नत की बशारतें सुनाई जा रही हैं, जन्नत की खुशखबरियां सुनाई जा रही हैं, इसलिए कि इनकी निस्बत आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ चुकी है। आपसे पहले दुनिया की क्या हालत थी, तारीख बताती है कि जब किसी बादशाह से कोई दूसरा बादशाह मुलाकात करने के लिए आता था, तो उसके स्वागत के लिए, उसके वेलकम के लिए, उसकी खुश आमदीद के लिए, उसके इस्तकबाल के लिए किसी खूबसूरत नौजवान गुलामों को तैयार किया जाता था, और दो नौजवान खूबसूरत गुलामों को तैयार करके एक दूसरी जानिब खड़ा कर दिया जाता, और उस गुलाम को पूरे उसके जिस्म को रुई से बांध दिया जाता था। एक दूसरे गुलाम को भी जो खूबसूरत था, नौजवान था, दूसरे दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाता, और उसको भी पूरा रुई से बांध दिया जाता था, पूरा रुई से लिपटा हुआ। ये दोनों गुलाम रुई से लिपटे हुए हैं। अब बादशाह का जब आने का वक्त करीब होता था, और वो बादशाह जब मिलने के लिए आता था, अभी वो बादशाह थोड़ी दूर पर है, उन गुलामों के अंदर आग लगा दी जाती है, वो गुलाम तड़पते हैं, वो गुलाम बिलखते हैं, लेकिन देखिए कि उन इंसानों को जलाया जा रहा है, और जितना वो तड़पता था, जितना वो बिलबिलाता था, वो आने वाला बादशाह ये समझता था कि मेरा अच्छी तरह इस्तकबाल किया जा रहा है, मेरा अच्छी तरह वेलकम किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। ये दुनिया की तारीख थी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले। मगर कुर्बान जाए आमना के लाल पर, आमना की नूरे नजर पर, फातिमा के अब्बू जान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
कि आपने बीवी का मकाम भी बतलाया, आपने शोहर का मकाम भी बतलाया, आपने माँ का मकाम भी बतलाया, आपने बाप का मकाम भी बतलाया, और आपने कहा लोगों तुम्हारे लिए ये बेटी रहमत है, जहमत नहीं है। वो लोग जो बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया करते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगों जिस घर के अंदर दो बेटियां पैदा हो और वो उनकी अच्छी तरह तरबियत करे, अच्छी तरह परवरिश करे, हत्ता कि उनका निकाह कर दे, तो वो बंदा जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के करीब हैं। ये आपने लोगों को जिंदगी गुजारने का तरीका सिखलाया, औलाद को माँ बाप का मकाम बतलाया और कहा लोगों माँ तुम्हारे लिए जहमत नहीं है बल्कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, लोगों तुम्हारी माओ के कदमों तले तुम्हारी जन्नत है, माँ के कदमों तले तुम्हारी जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा है। औलाद को माँ बाप का मकाम, माँ बाप की इज्जत, माँ बाप की वक़ात बतलाई और कहा कि जिस बंदे ने अपने माँ बाप पर एक बार मोहब्बत की नजर से नजर डाली, अल्लाह उसको एक हज और उम्रे का, जो कि मकबूल हज और मकबूल उम्रा, उसका सवाब अता फरमाते हैं। या नबी अल्लाह, अगर कोई बार बार निगाह डाले, मोहब्बत की नजर बार बार डालता रहे, तो क्या हर बार मोहब्बत की नजर डालने के बाद हर बार हज उम्रे का सवाब मिलेगा? हाँ, अगर बंदा बार बार अपने माँ बाप को प्यार और मोहब्बत की शफकत भरी नजरों से देखता रहे, अल्लाह बार बार मकबूल हज और मकबूल उम्रे का उसको सवाब अता फरमाएंगे। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के अंदर लोगों को जिंदगी गुजारने का तरीका सिखलाया, बीवी का मकाम शोहर को बतलाया और शोहर को बीवी का मकाम बतलाया और कहा खैरुकुम li ahli, तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो अपनी बीवी बच्चों के लिए सबसे अच्छा हो। वही लोग कि जिनके अंदर दुश्मनी थी, भाई भाई की दुश्मनी थी, जो भाई भाई का कातिल था, जो जरा जरा सी बात पर तलवारें लेकर निकल आया करते थे मैदान के अंदर, लेकिन जब आपने उन पर मेहनत की, उनको समझाया, तो वो क्या हुआ? फअस्बहतुम बिनियमतिही इख्वाना। कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाते हैं वो लोग आपस में भाई भाई हो गए। अल्लाह ने उनके दिलों के अंदर उल्फत को पैदा कर दिया, मोहब्बत को पैदा कर दिया, प्यार को पैदा कर दिया। मेरे भाइयों, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि मुहसिन इंसानियत, जो कि मुहसिन कायनात हैं, आपने जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका हमको सिखलाया है। लिहाजा आपके हम पर ये सबसे बड़ा एहसान है कि आपने हमें अल्लाह ताला तक पहुंचने का रास्ता बतलाया। मगर आज हमारे मुआशरे से एक चीज जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उस चीज का निजाम खत्म होता जा रहा है, और वो क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद भेजना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद भेजना, मर्द हो तब भी, औरत हो तब भी, उनके अंदर से ये रिवाज खत्म होता जा रहा है। जबकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, मन सल्ला अलैहि वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 मर्तबा रहमतें निछावर करते। और जो बंदा सुबह शाम 100 बार दरूद पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो उस पर बेशुमार रहमतें फरमाएंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरे हदीस शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन मेरे नजदीक सबसे ज्यादा वो बंदा करीब होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजता होगा। और दरूद भेजने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत 2 इनामात से नवाजते हैं। पहला इनाम अल्लाह रब्बुल इज्जत कि वो इंसान जहन्नम की आग के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि आप फरमाते हैं कि जहन्नम की आग के अंदर जलना दूर की बात, बल्कि जहन्नम का धुआं उसके करीब तक भी नहीं जाएगा। दूसरा इनाम अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ, अल्लाह वालों के साथ, नेक लोगों के साथ उसका हशर फरमाएंगे। लिहाजा हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत के साथ दरूद भेजना चाहिए। और अगर बीच में खुतबे के अलावा और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अजान या जो मुकब्बिर जब तकबीर कहता है इनमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिया जाए तो फौरी तौर पर आप पर सलाम ना भेजा जाए। बाकी इनके अलावा आपका जब नाम आए तो उम्मत पर वाजिब है कि आप पर दरूद भेजे, वाजिब है।
البتہ اذان دی, اذان کے بعد ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے, مؤذن نے تکبیر کہے, تکبیر کے بعد ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں. تو خیر بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام محسن انسانیت ہیں, اور آپ کا اسوہ, آپ کا طریقہ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو میرے بھائیوں, میں نے خطبے کے اندر چند آیات تلاوت کی جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 3 خصوصی انعامات سے نوازا. نمبر 1 شرح صدر, نمبر 2 وضع وزر, نمبر 3 رفع ذکر. شرح صدر, آپ کو بنا مانگے عطا فرمایا. قرآن کریم کو جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں, اللہ حضرت موسیٰ سے خطاب ہوتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ آپ فرعون کے پاس جائیں, وہ فرعون بڑا سرکش ہو چکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں الہی رب اشرح لی صدری, یا اللہ میرا شرح صدر فرما دیجئے. یا اپنے محبوب کو آپ نے بنا مانگے شرح صدر فرمایا. وہاں حضرت موسیٰ شرح صدر کی دعا مانگ رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام, مرتبہ, منزلت, رفعت اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہوئی ہے. شرح صدر کسے کہتے ہیں؟ اے اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرح صدر سے مراد علم و حلم ہے. اللہ نے آپ کو شریعت کا, طریقت کا, معرفت کا علوم عطا فرمایا تھا. یعنی یوں کہا جائے کہ نسب نبوت کے جو شان علوم تھے اللہ نے وہ آپ کو کثرت سے عطا فرمائے. سبحان اللہ, آپ کی ذات کبھی آپ پر پوری زندگی میں مکھی نہیں بیٹھی. آپ کی ذات سبحان اللہ کبھی آپ کو جمائی نہیں آئی جو منہ پھاڑتے ہیں, کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جمائی نہیں آئی, کبھی آپ پر مکھی نہیں بیٹھی. سبحان اللہ, یہ آپ کی خصوصیات, اللہ نے آپ کو شریعت کے, طریقت کے, معرفت کے علوم عطا فرمائے. یہ ہے علم اور حلم. میں آپ کے سامنے 2 واقعے بتاتا ہوں. پہلا واقعہ جب آپ سفر طائف کے اندر تھے اور آپ نے اعلان فرمایا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں تم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اس جملے کا سننا تھا. آپ پر پتھرے برسائے گئے, آپ پر دائیں سے بھی پتھر, آپ پر بائیں سے بھی پتھر, اور آپ پر اتنے پتھر برسائے گئے آپ لہو لہان ہو گئے, اور آخر کار آپ ایک اونچی جگہ پر بیٹھے اور آپ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے یا الہی کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں جو آپ دوسروں کے حوالے مجھ کو کر رہے ہیں؟ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں آپ کو منانا پھر اس وقت تک ضروری ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں. خیر بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں یا نبی اللہ اگر آپ اجازت دیں اس شہر طائف کو جو دونوں پہاڑوں کے درمیان واقع ہے میں ان کو کچل کر رکھ دوں, ان کو تباہ کر دوں, ان کو برباد کر دوں, مگر قربان جائیے آمنہ کے لال پر, آمنہ کے نور نظر پر. آپ کہتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے ہیں, مجھے نہیں جانتے, اللہ میری قوم کو ہدایت دے, ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسل ایمان لائے. یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے, ان کی نسل ایمان لائیں گی. آپ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کر دیا. یہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ آپ کو حلم سے نوازا تھا, برداشت کی, اللہ نے آپ کو قوت سے نوازا تھا, یہ آپ کے اندر حلم تھا, بردباری تھی. دوسری جب مکہ فتح ہوا کفار سمجھ رہے تھے, مشرکین سمجھ رہے تھے کہ آج ہم بخشے نہیں جائیں گے, آج مسلمان لوگ ہم کو نہیں چھوڑیں گے, مگر قربان جائے آمنہ کے لال پر میں مختصر واقعہ بتاتا ہوں. آپ نے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. لوگوں آج میں تم سے وہی کہتا ہوں, وہ لوگ جنہوں نے آپ کو پاگل بھی کہا تھا, آپ کو دیوانہ بھی کہا تھا, آپ کو مجنون بھی کہا تھا, آپ کو جادوگر بھی کہا تھا, آپ کے قدموں تلے جنہوں نے آپ کی گزرگاہوں میں, آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے, جنہوں نے آپ کے خلاف سازشیں بھی رچی تھی, جنہوں نے آپ کے چچا کو قتل کیا تھا, جنہوں نے حضرت سمیہ کو
शर्मनाक तरीके से शहीद किया था, वो लोग जिन्होंने आपके ऊपर ऊंट की ओजड़ियां डाली थी, मगर आपने ऐलान कर दिया, लोगों मैं तुम सबसे वही कहता हूं जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, मैं तुम सबको माफ करता हूं। आज जो अबू सुफियान के घर के अंदर दाखिल हो जाएगा उसको भी माफी, हिंदा तुझे भी माफी। आपने आम माफी का ऐलान कर दिया। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिल्म है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुर्दबारी है। और तीसरा इनाम जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए रब, ए मेरे नबी, मैंने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। अजान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक अजान देने वाला मुअज्जिन अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह के नबी का नाम न लेते। नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह के नबी का नाम न आ जाए। नमाज जनाजा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक अल्लाह के नाम के साथ नबी का नाम न आ जाए। ए मेरे महबूब, पहले मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र, नमाज में पहले मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र। ए मेरे नबी, नमाज जनाजा में पहला मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र। जब तक दुनिया आबाद रहेगी मेरा जिक्र जब तक होता रहेगा, मेरे जिक्र के साथ साथ मेरे मोहम्मद तेरा भी जिक्र होता रहेगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरे नाम को, तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। हर जगह पर अल्लाह ने आपके नाम के साथ अपना नाम भी लिया और आपके नाम को बुलंद कर दिया। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने लाडले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।